Dear students, good morning. Today we are going to discuss the remaining part of our lesson population. Today we are going to discuss about process of population growth or process of population change. Dear students, there are three main processes of change of population. First one is the birth rates, second one is the death rates, and third one is the migration. Okay. Sir, what is birth rate? It is the number of live births per 1000 persons in a year in a country. It is the basic component or factor of growth of population in India because birth rates have always been higher than the death rates. Second, sir, what is death rate? It is the number of deaths per 1000 persons in a year. In India, death rate remains always lower than the birth rates. Death rate has decreased in India due to food security and advancement of medical science. Up to 1980s, India's birth rate was very high. But 1980 onwards, it has started, or the annual birth rate has started declining trends due to focus on the education and many other factors. Third one and the most important point or the important point of the population change or process is migration. In migration, people move from one region to another. Migration can be categorized into two parts: internal, that is within the country, and international, among the countries or between the countries. But internal migration does not change the size of population, but it influences the distribution of population within the nation. Suppose 5 persons from Rajasthan came in Delhi for work purpose or for job purpose. Then the total number of population in Rajasthan would decrease, but total number of population in Delhi would increase, but the population of India would remain same. Next, dear students, in India most migrations, ज़्यादातर इंडिया में जो migrations हैं ये रूरल मीन्स अर्बन एरिया, रूरल एरियाज मीन्स विलेजेस टू अर्बन एरियाज सिटीज़ की तरफ रहे. इन विलेजेस देर आर पुश फैक्टर्स, लोगों को मजबूर करने वाले फैक्टर्स हैं, एंड इन सिटीज़ देर आर पुल फैक्टर्स अट्रैक्ट करने वाले. इन इंडिया इन विलेजेस especially in Bihar, Odisha, etc., poverty is very high, unemployment is very high. These are the push factors. And in cities, there is employment, there are better living conditions, so these are the pull factors of attracting the population. Migration is an important factor of population change. It not only changes the size of population, but also it changes the composition of population. Here we would study about urbanization. Sir, what is urbanization? When people from rural areas start to live in urban areas, then this one is known as urbanization. In India, in 1951, 17.29% out of the total population used to live in cities. But in 2011, it has increased up to 31.80. It means मोटी भाषा में हम कह सकते हैं कि इंडियाज 1/3 population is living into urban areas. In 2001 in India 35 cities were millennium plus city. Millennium plus city means a city that is having minimum population of 10 lakh या more than 10 lakh. It has increased from 35 in 2001 to 53 in 2011. Now we are going to discuss about the age composition. In age composition, we can categorize the total population into three categories. First one is the children. The part of population that is below the age of 15 years is known as children category. These are not economically productive. It means वो कोई भी इकोनॉमिक काम नहीं करते हैं. For food requirement, clothing, education, medical care, they are dependent on their parents. Second category of age composition is working age.
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी है। इसमें 15 टू 59 ईयर्स के लोग आते हैं। दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, वो किसी न किसी एक्टिव में बिजी होते हैं। एंड दे आर बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव, इट मीन्स उनके बॉडी ग्रोथ हो चुकी होती है। एंड दे आर इन ए कंडीशन टू मैनेज देयर फैमिली, अपने बेबीज को बर्थ दे सकते हैं। ये वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा है। थर्ड वन इज़ द एज्ड कैटेगरी। थर्ड वन इज़ द एज्ड कैटेगरी। इन दिस कैटेगरी 59 एंड अबव ईयर्स पीपल आर कैटेगराइज्ड। हो सकता है ये लोग किसी एक्टिविटी में लग रहे हों, बट इनको अपॉइंटमेंट के तरीके से नहीं रखा जा सकता। ये रिटायर्ड लोग माने जाते हैं। हो सकता है ये अपनी मर्जी से कोई काम कर रहे हो। अब किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन में नंबर ऑफ चिल्ड्रन पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ एज पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, उतना ही उस कंट्री का डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ेगा। सपोज आपकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, यू आर 2 ब्रदर एंड सिस्टर या 2 सिस्टर्स और 2 ब्रदर्स एंड योर मदर एंड फादर। और मान लीजिए योर फादर इज ओनली द अर्निंग पर्सन, देन योर फैमिली डिपेंडेंसी रेशियो इज 1:3। और किसी कंट्री में जितना डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा होगा, उस कंट्री का या उस फैमिली का इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा। इन इंडियाज़ टोटल पॉपुलेशन, द चिल्ड्रन कैटेगरी is having 34.4% population of the total population, and it is a big part. Adults are 58.7%. These are those persons who are economically productive, और देश का दारमदार इन्हीं पे डिपेंडेंट होता है। एंड एज्ड मीन्स एज्ड पर्सनस, दे आर 6.9%। इट मीन्स देश की टोटल पॉपुलेशन का जो डिपेंडेंसी पॉपुलेशन है, दैट इज मोर देन 40%. Now we are going to discuss another important aspect of population, that is sex ratio. Here, what is sex ratio? The number of females per 1000 male in population is known as sex ratio. किसी भी कंट्री के सोसाइटी की क्वालिटी को मेज़र करने के लिए it is important to know the sex ratio. In our country, sex ratio remains always unfavorable to females. अब 6.2 टेबल में यू हैव स्टडीड ऑलरेडी दैट इन 1951 पर 1000 जेंट्स के कंपैरिजन में 946 फीमेल थी। एंड देन उसके बाद में डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स थी, बट आफ्टर 2001 ये इंक्रीजिंग हुआ। ये गवर्नमेंट ने फीमेल फोस्टिसाइड्स के ऊपर एक्शन लिया। लड़कियां मेरी बेटी मेरा अभिमान, माई डॉटर माई प्राइड, इस प्रकार की स्कीम्स चलाई। और बहुत सारी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई जिसके कारण लड़कियों और लड़कों में भेदभाव कम हुआ, जिसके कारण थोड़े से सेक्स रेशियो में मेल फीमेल रेशियो बढ़ रहा है। बेटा इन इंडिया केरला एज पर 2001 केरला का एज पर 2011 केरला सेक्स रेशियो स्टेट्स के टर्म में सबसे ज़्यादा है। पर 1000 मेल के कंपैरिजन में केरला में 1084 फीमेल्स हैं। और यूटीज की बात करें तो पुडुचेरी। अब आपसे पेयर में पूछे कि विच स्टेट एंड यूटी इज हैविंग हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो देन यू हैव टू गिव केरला एंड पुडुचेरी। while Haryana is having the lowest sex ratio, and in UTs Delhi is having the lowest sex ratio, and it is a matter of worry for Haryana. ये हरियाणा के लिए एक शर्म की बात है। Then another important factor of population is literacy rate. किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी को लिटरेसी रेट के आधार पे मेजर किया जाता है। किसी भी कंट्री के इन्फॉर्म्ड मीन्स वेल एजुकेटेड, वेल अवेयर्ड सिटीजन्स, इंटेलिजेंट चॉइस रखते हैं, वही लोग देश में रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कैरी ऑन करते हैं। इसलिए किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट में लिटरेसी लो है तो इट इज़ ए बैरियर, इट इज़ एन ऑब्स्टेकल। अब हम काउंट करेंगे सर हु इज़ ए लिटरेट पर्सन। एज पर 2011 पॉपुलेशन, ए पर्सन whose age is 7 years or above the 7 years and can read and write any Indian language and can understand any Indian language is known as literate person. In India, the literacy rate as per 2011 and 2001. In 2011, the literacy rate was nearly 82%.
while in 2001 it was 64%. But there is a big difference in the literacy rate of male and female. Now we are going to discuss occupational structure. Here we would discuss in different three activities like the primary activity or primary sector, secondary activity or secondary sector, and tertiary activity or service activities or the tertiary sector. इन डिफरेंट सेक्टर्स में कितने कितने लोग लगे हुए, जो कंट्रीज टुडे आर या द कंट्रीज विच आर टुडे डेवलप्ड कंट्रीज, उन कंट्रीज में मोर वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज्ड इन टर्सरी सेक्टर, और जनरली जो कंट्रीज डेवलपिंग हैं इन सच कंट्रीज लाइक इंडिया, मोर वर्किंग पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर. डियर स्टूडेंट्स, सर प्राइमरी सेक्टर्स, इन प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री अर्थात पशुपालन, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग एक्टिविटी आर इंक्लूडेड. In secondary sector, manufacturing is included, building construction is included, road construction या construction work is included. In tertiary sector, transport, teaching, communication, doctor service, cobbler service, administrative services, these are included. But beta, in developed countries, more people are engaged into secondary and tertiary sector, while in developing countries, more working force is included into primary sector. In India, out of the total workforce या वर्किंग एज पीपल हु आर लाइंग बिटवीन 15 to 59 ईयर्स, उसका 64% एग्रीकल्चर में इंगेज है, जबकि सेकेंडरी सेक्टर ओनली 13% एंड टर्सरी सेक्टर ओनली 20%. इस शिफ्ट को चेंज होना ज़रूरी है. कुछ चेंजेस आ भी रहे ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ ए कंट्रीज पॉपुलेशन इज हेल्थ स्टेटस. हेल्थ स्टेटस किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है. पॉपुलेशन, आवर गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मैनी स्कीम्स, हैज मेड मैनी एफर्ट्स फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ सेक्टर. डियर स्टूडेंट्स, इन 1951 द डेथ रेट इन इंडिया वाज 25. इट मीन्स पर 1000 में से 25 लोग पर ईयर मरते थे. बट इन 2011 इट हैज़ डिक्रीज्ड अप टू 7.2. That is the big achievement. Likewise, life expectancy. Life expectancy means expected length of life of a person at the time of birth. In 1951, in India, life expectancy or the possible life of a person at the time of birth was 36.7 years only. But as per 2012, it has increased up to 67.9. It is due to the improvement in health infrastructure. गवर्नमेंट ने हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत स्टेप्स लिए हैं. गवर्नमेंट ने इन्फेक्शन डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत स्टेप्स लिए हैं, और मॉडर्न मेडिकल साइंस में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए बहुत अचीवमेंट्स लिए. बट इसके अलावा भी हेल्थ सिचुएशन इंडिया में ए मैटर ऑफ वरी है. हमारे यहाँ पे वी हैव स्टडी अबाउट द कैलोरी कंजम्पशन. यू नो दैट इन सिटीज इट इज़ रिक्वायर्ड 2100 कैलोरी पर पर्सन एंड इन अर्बन एरियाज 2400 कैलोरी. बट ये अभी बहुत बड़ी पॉपुलेशन को प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है. देन प्रॉब्लम ऑफ सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर. हमारे यहाँ पे देर इज़ बिग प्रॉब्लम ऑफ सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर. देन सैनिटेशन, सफाई व्यवस्था, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ की बड़ी प्रॉब्लम है. आज भी रूरल इंडिया में 1/3 पॉपुलेशन के सामने ये प्रॉब्लम है जिसे सॉर्ट आउट करना है. देन एडोलेसेंट्स पॉपुलेशन. बेटा पॉपुलेशन में 13 to 19 ईयर्स के जो लोग हैं, 13 to 19 ईयर्स के जो लोग हैं, दे आर नोन एज द एडोलेसेंट्स पॉपुलेशन. ये हमारी टोटल पॉपुलेशन का 1/5 और यू कैन से 20% है. दैट इज़ द बिग पार्ट. ये लाइफ की वो एज है, ये देश के रिसोर्सेज हैं, देश का फ्यूचर इन्हीं की शोल्डर्स पे डिपेंडेंट है. बट इनको न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है. इस समय हमारा ऑल राउंड ग्रोथ हो रही होती है. उस दौरान आप देखते हैं कि डिफिशियंसी हो सकती है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन फूड या अनबैलेंस्ड डाइट वगैरह के कारण. आज इंडिया में 13 to 19 ईयर्स की एज ग्रुप में गर्ल्स में बहुत सारी में अनीमिया की प्रॉब्लम है, अर्थात दे आर सफरिंग फ्रॉम द ब्लड प्रॉब्लम, अर्थात उनमें ब्लड कम है, हीमोग्लोबिन कम है. उनकी तरफ हमें प्रॉपर ध्यान देना है.
गर्ल्स को एडोलेसेंस एज में 13 to 19 ईयर्स में जो उनकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आते हैं उनके बारे में उन्हें सेंसिटाइज करना, उनको सेंसिटिव करना बहुत ज़रूरी है। देन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इट वाज फ्रेम्ड इन 2005। इसमें गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग पे फोकस किया, इंडिविजुअल की हेल्थ एंड वेलफेयर पे फोकस किया। नो डाउट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हैड्स बीन स्टार्टेड इन 1952। उसमें गवर्नमेंट ने रेस्पॉन्सिबल एंड प्लांट मातृत्व पेरेंटहुड डेवलप करने की कोशिश की और आगे चल के गवर्नमेंट ने एनपीपी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 बनाया। दीज आर द एलिमेंट्स और दीज आर द फैक्टर्स ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। इसमें लिखा गया कि टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, छोटे बच्चों का मृत्यु दर, दोज हु डाई बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ दियर लाइफ, उनको 1000 से नीचे 30 पर तक लाना। इसी प्रकार वो डिजीज जो वैक्सीन से प्रिवेंट की जा सकें उसका सभी के लिए, ईच एंड एवरी पर्सन के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन करना। गर्ल्स को डिलेड मैरिज के लिए मोटिवेट करना और फैमिली प्लानिंग को पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम बनाना। देन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 और अडल्ट्स के लिए क्या था? अडल्ट्स को नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया। इसमें इनको एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिस प्रकार आपने एड्स वगैरह का सुना होगा, उन डिजीज़ से बच्चों को कैसे बचाया जाए उनको बताया जाए। डिलेड मैरिज के लिए मोटिवेट करें, जो वो फैमिली लाइफ में जाएं तो चाइल्ड बियरिंग की बातें उनको बताई जाए। अनवांटेड और अनप्रोटेक्टेड सेक्स और अनवांटेड प्रेगनेंसी से कैसे बचा जाए। कॉन्ट्रासेप्टिव्स like the condoms and different pills which are available into market which can be used for preventing the unwanted pregnancies, उनको लोगों तक पहुंच बढ़ाई जाए, असेसेबल किया जाए और उनकी कॉस्ट डाउन की जाए। बच्चों को इस एज में फूड सप्लीमेंट की बहुत आवश्यकता है, वो दिया जाए, न्यूट्रिशनल सर्विसेज दी जाए और उनको चाइल्ड मैरिज से प्रोटेक्ट करने के लिए, बाल विवाह से रोकने के लिए लीगल मेजर्स को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। इसलिए पॉपुलेशन जो है ये किसी भी कंट्री की मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स है, इसलिए ये वेल एजुकेटेड और हेल्दी पॉपुलेशन किसी भी कंट्री को पावरफुल बनाती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस MCQs ऑफ एक्सरसाइज। माइग्रेशन चेंज द नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन बोथ द एरियाज ऑफ द डिपार्चर एज वेल एज अराइवल। ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इन ए कंट्री इज ए रिजल्ट ऑफ हाई बर्थ रेट्स। The magnitude of population growth refers to the number of persons added to each year. According to the census, a literate person is one who is 7 years old and can read and write any Indian language with understanding. Okay, dear students, we have completed this lesson.